Hello students, welcome back. Today we are going to start a new chapter and that is called application of derivatives. Derivatives we have done a lot. So, बहुत सारा differentiation हमने किया. First order, second order, nth order, बहुत सारा कुछ कर चुके हैं. And now we are going to use that. कैसे use करने वाले हैं? And that is called application of derivatives. So सबसे पहले जब differentiation पढ़ाया गया था, तो what I said कि differentiation is basically rate of change. Differentiation is basically rate of change of y with respect to x. If I say dy by dx, if I say dx by dy, that will be rate of change of x with respect to y. If I say dx by dt, rate of change of x with respect to t. मतलब t जैसे जैसे change होता है, x में क्या changes आते हैं, this is what we mean, and that is instantaneous rate of change. एवरेज चेंज तो बहुत आसान होता था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज चेंज, जो भी आपको पूछना है. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दैट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज. And this part we have done, you have done a lot in physics. फिजिक्स में बहुत सारा डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं एंड वी नो अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज इन फिजिक्स. फॉर एग्जांपल, इफ डिस्टेंस traveled by a particle at some point at some time t is given as 2t cube minus 3t square plus 5t plus 1. So what is the speed of that particle at some given time, at some instant? So if I say कि speed, and that is actually given by ds by dt, rate of change of length or distance traveled is basically speed, and that will be 6t square minus 6t plus 5. Now if someone was ask you कि what is acceleration at some given time t, acceleration is basically dv by dt, and dv by dt is basically इसका भी डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, एंड दैट इज 12t माइनस 6. फिर आई कैन से कि भाई dA by dt क्या होगा, dA by dt का मतलब d2v by dt स्क्वायर, दिस विल बी dqs by dt क्यूब, एंड दैट विल बी 12 विच इज एक्चुअली कॉल्ड जर्क. तो डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, जर्क, एवरीथिंग वी कैन फाइंड. तो ये सब पार्ट हम फिजिक्स में बहुत कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से कि एक क्यूब है, देयर इज अ क्यूब, और ये क्यूब का जो साइड लेंथ है वो है a. So if a is changing at the rate 1 meter per second और 1 centimeter per second बोल लो, if side length of a cube, एक क्यूब है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है, कैसे? मैजिक है, यू हैव सीन मैजिक शोज, एंड वहां पे क्या होता है, साइज अचानक बढ़ता जाएगा. दे कैन डू दैट. तो if size of this cube is keep on increasing at the rate of 1 centimeter per second, then what about the surface area? Surface area किस रेट से चेंज हो रहा है, that may be the question. At what rate volume is changing, that may be the question. So what we are going to do is we are going to solve this. कैसे? Rate of change of side with respect to time, मतलब dA by dt हमें given है 1 centimeter per second. And what we need to find? Rate of change of surface area. और surface area होता है क्या है क्यूब का? क्यूब का surface area होता है a square. Actually no, a square तो one side हुआ. Total 6 faces होते हैं. Total 6 faces होते हैं तो that will be 6a square.
Now we have to find rate of change, so we have to differentiate this, and that will be with respect to A. No, that will be with respect to T. A के रिस्पेक्ट में पूछा जाता तो अलग बात है, बट हमें टाइम के हिसाब से चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया 12 है। एक्चुअली नो, साथ में dA by dt भी आएगा, इतना डिफरेंशिएशन तो आपको आता है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज 12a into dA by dt, दैट इज 1, तो 12a सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, a स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। Now if we talk about the volume, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, और a क्यूब किस रेट से चेंज होगा, दैट विल बी dv by dt एंड दैट इज 3a स्क्वायर इंटू dA by dt, तो 3a स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज होगा। यूजुअली क्वेश्चंस में क्या होता है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट सम पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा, या व्हेन साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज विल बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन साइड इज 3 सेंटीमीटर, तो दैट विल बी 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एज सिंपल एज दैट, इतने टाइप सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट एल्स कैन वी डू? What else? What else is, suppose there is a sphere. ये स्फेयर है, स्फेयर का जो रेडियस है r, that is changing at the rate 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज बलून है, बलून को वी आर ब्लोइंग अप, सपोज बलून को ब्लो करेंगे, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर है। तो यू नीड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जस्ट लाइक दिस। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। वी नो दैट कि सरफेस एरिया होता है 4 pi r square, surface area is 4 pi r square. So ds by dt 4 pi तो चलो कॉमन बाहर आ गया, r square का डेरिवेटिव 2r into dr by dt and that gives me 8 pi r into dr by dt is basically 2, तो 16 pi r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलरली इफ आई से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में हो जाएगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv by dt will be what, 4 pi r square dr by dt, which is actually 2, will give you 8 pi r square सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का यूज करके वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ वी हैव दीज टू एग्जांपल्स। फर्स्ट इज dA by dt, what is A? Let's see, is 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड फॉर अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के लिए जो A क्या होगा, एरिया होगा। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज चेंजिंग एट द रेट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू ब्रेथ का स्क्वायर, देन एंड तो यू हैव टू फाइंड dl by dt एट b इक्वल टू 9/2। जब b का वैल्यू 9/2 होगा उस समय आपको dl by dt फाइंड करना है। So the idea is कि length is b square and breadth is b. So area will be what? Area will be bq. Now you have to understand this. Very simple सा है, कुछ भी नहीं है। Now you pause the question, pause the video and try to solve this question. I am going to do this. Differentiate करते हैं dA by dt, that will be 3b square into dB by dt.
So dA by dt is given as 48 and dB by dt we can find when B equals to 9 by 2. What do I get? I get dB by dt equal to 48 upon 3 into 4 by 9. But actually what we need to find is not dB by dt. हमें क्या फाइंड करना है? dL by dt फाइंड करना है. अब dL by dt कैसे मिलेगा? So we know that using this I will say dL by dt equal to 2B into dB by dt. And this gives me dL by dt equals to 2B, B का वैल्यू 9 by 2 into dB by dt. dB by dt is 64 upon 9. ये कैंसल 64 by 9 centimeter per second would be the answer. Now what also we can do is हम L में ही सॉल्व कर लेते हैं because we need to find dL by dt. तो I can also say कि y go to B, we can use L also. So area is length into breadth और breadth क्या है? Under root L. Think of it. That is L power 3 by 2. So dA by dt is 3 by 2 L power 1 by 2 dL by dt. हमें dL by dt फाइंड करना था. So dA by dt is 48 and what is L? L is basically B square. तो B अगर 9 by 2 है तो L 9 square by 2 square हो जाएगा. सॉरी रूट L है. रूट L तो एक्चुअली B है. We have to find root L and root L is basically B. तो B का वैल्यू और साथ में dL by dt. That gives me 360. तो dL by dt क्या मिला? dL by dt is 16 4 jar 64 upon 9 centimeter per second. Both we are getting the same answer. So that is the objectivity of the question कि हमें अगर L के बारे में बात करना है तो we should actually process with L only. But यहाँ पे क्या था? L का वैल्यू गिवन था तो जनरल आइडिया बच्चे ऐसा करते भाई चलो सॉल्व किया फिर देखेंगे क्या फाइंड करना है. नहीं, फाइंड क्या करना है वो पहले से पता होगा. इट मे बी सिंपल. हाँ, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो दैट्स ओके कि जो मिलता है वो फाइंड कर लो, बाद में मैनिपुलेट कर लेंगे. बट यूजुअली ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है. यू कैन एक्चुअली फाइंड व्हाट इज डायरेक्टली गिवन. तो अभी तक ये रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस हमने सब ज्योमेट्री के लिए किए. एक जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं. अ पॉइंट मूव्स ऑन y क्यूब इक्वल टू 27x. दिस इज कॉल्ड क्यूबिकल पैराबोला. Find interval in which x actually abscissa changes at the slower rate than y. So the idea is कि y क्यूब इक्वल टू 27x है. डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर dy बाई dt इक्वल टू 27 dx बाई dt. कहता है x चेंजेस एट स्लोअर रेट देन y. मतलब dx बाई dt का मॉड इज लेस देन dy बाई dt का मॉड. और आई कैन से dy by dx का मॉड इज ग्रेटर देन 1. थिंक ऑफ इट. dy by dx का मॉड ग्रेटर देन 1 और dy by dx आई कैन फाइंड फ्रॉम हियर एंड दैट इज 27 अपॉन 3y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. सो आई कैन से कि y स्क्वायर इज लेस देन 9. And so I can say that y belongs to -3 to 3. तो y का वैल्यू -3 से 3 है. सिमिलरली वी कैन फाइंड x का वैल्यू ऑल्सो. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दैट इज ओके. अ पॉइंट मूव्स, फाइंड द इंटरवल. अब इंटरवल व्हाट? इंटरवल ऑफ व्हाट? आई डोंट नो. सो लेट्स फाइंड आउट y मिल गया. अब x फाइंड करते हैं. y का वैल्यू -3 है तो x का वैल्यू -1 होगा. y इज 3 तो x विल बी 1. तो x होगा -1 से 1 एंड y होगा -3 से 3. So that is another question. Let's do one last question. Suppose
बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. सपोज अ रॉड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, रॉड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर स्लाइड्स along a two perpendicular line. तो you can take axis. तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये 13 सेंटीमीटर का एक रॉड यहां स्लाइड हो रहा है, समथिंग लाइक दिस. इफ दिस पोर्शन is moving at the rate 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये पोर्शन जो होगा वो नीचे मूव करेगा at what rate that you need to find. When this distance is say 5, इसको 5 की जगह 2 कर लेते हैं. Okay. That is your question. So pause the video and try to solve this question. I am going to clean this up and then I will solve it. Okay, so now we have this question. So the idea is, if I take it as x and I take it as y, तो I can say that कि x square plus y square equal to 169, 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस. ना डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx by dt plus 2y dy by dt equal to 0. 2 and 2 कैंसिल. तो इफ x का वैल्यू 5 है, उस करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू उस मोमेंट पे क्या होगा? इफ दिस इज 5, इट हैज टू बी 12, क्योंकि ओवरऑल तो फाइनली लेंथ 13 ही है. पाइथागोरस से यू कैन फाइंड दिस. तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन x इक्वल टू 5, dx by dt is 2, y is 12, dy by dt is unknown, should be equal to 0. And that gives me dy by dt is minus 10 by 12 minus 5 by 6 centimeter per second. Now what is this? Rate of change of y, मतलब y का जो मूवमेंट है वो 5 by 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. मतलब x से काफी स्लो है. x is at 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उसके हाफ से भी कम है. एंड what does this negative sign means? नेगेटिव साइन मीन्स कि y का वैल्यू इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है. एंड सी x जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला रॉड का पोर्शन नीचे आता जाएगा. तो x इज मूविंग फॉरवर्ड, तो y इज मूविंग डाउन, एंड दिस इज व्हाट दैट माइनस इज रिप्रेजेंटिंग. तो मैथ्स में आपको साथ में डायरेक्शन भी मिल जाएगा. लेट्स से देयर इज वन मोर क्वेश्चन. 16x स्क्वायर plus 9y square equals to say 1. You have to find the rate of change. You have to find some point. Find the point where abscissa and ordinate are changing at same rate. Abscissa and ordinate are changing at same rate. X and y are changing at same rate. मतलब dy by dx, dy by dt equal to dx by dt, or you can say dy by dx equal to 1. At which dy by dx equal to 1. तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आई गेट 32x प्लस 18y dy by dx equal to 0. तो dy by dx become minus 16x upon 9y, minus 16x upon 9y. Now the question is कि this should be equal to 1, we are given. So I can say कि minus 16x equal to 9y. That is your equation number 2. Now equation number 1 and 2 we need to solve and we'll be able to find. So if I put value of 16x there, you can find the value of y. और अगर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एंड y का वैल्यू है 144 अपॉन 81 x स्क्वायर. 144 अपॉन 81 x स्क्वायर इक्वल टू 1. तो दिस इज 9 9 जार 81.
16 9 jar 144, 144 is 288, x square equal to 9, तो x equals to 3 upon, tell me, 3 upon 12 root 2 plus minus. So at x equal to plus minus 3 upon 12 root 2, rate of change of x will be equal to same as rate of change of y. हाँ, रेट ऑफ चेंज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर x इंक्रीजिंग है तो y डिक्रीजिंग है, y डिक्रीजिंग है तो x इंक्रीजिंग है. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर अबाउट इट. This ellipse is something like this. Rate of change of y is same as rate of change of x. मतलब dy by dx is basically 1. मतलब slope is 1. मतलब 45 डिग्री वाला केस बनेगा. So these are the 2 points. x का वैल्यू प्लस 3 by 12 root 2 and minus 3 by 12 root 2. अब अगर y की बात करेंगे तो y हम यहां से फाइंड कर लेंगे. y में क्या मिलेगा? x पॉजिटिव है तो y निगेटिव आएगा, और y निगेटिव है तो x पॉजिटिव आएगा. तो आई कैन से y इक्वल्स टू माइनस प्लस 16 by 9 से मल्टीप्लाई करना है. 16 by 9 इफ आई मल्टीप्लाई, लेट्स नॉट सिंप्लीफाई दिस. तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ प्लस और प्लस के साथ माइनस. सो एट दीज 2 पॉइंट्स दे आर मूविंग एट द सेम रेट. बट द क्वेश्चन कुड बी कि व्हेन x इज इंक्रीजिंग एंड y इज डिक्रीजिंग एट द सेम रेट. x इंक्रीजिंग के साथ y डिक्रीजिंग है एट द सेम रेट, मतलब dy by dx इज -1 और dy by dx -1 करोगे तो ये दोनों पॉइंट आएंगे. एंड दैट इज द आइडिया. सो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड दैट इज कॉल्ड rate of change पे based questions. In the next application is basically error and approximation that we are going to do in the next video. So I think this is all clear. सब कुछ समझ में आ गया होगा. कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है. कोई न कोई रिलेशन वेरिएबल्स में होगा, वो रिलेशन लिख करके दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे and you will be able to manage the question effectively. Thank you.